Hello students, this is Dr. Mohammad Ali over here and we are going to continue with our previous study on hydropower plants. So in the previous lecture, in the previous videos, we saw the how to select the site for power plant, what must be the optimal site, what are the factors that we should consider in selecting such a site. Now, today we are going to consider the essential elements of the hydropower plant. What are the main elements or the main components basically? So, as we can see over here that we are having a dam over here that is built on a river. Okay, and then how we build a dam we will see later on, but the dam is built over a river, and by building a dam we create a reservoir. Okay, and the reservoir is being fed through either a single source or single river or multiple rivers. So this whole area is basically known as the catchment area. The area which is feeding this reservoir is known as the catchment area. And then we have a dam. That dam using conducts or paths and goes to the water goes to the turbine through the certain gates. These gates are basically known as sluice gates. Okay, and these gates are known as sluice gates because of their sliding nature. These gates are sliding in nature, they are sliding gates and they control the flow of water. Then we have penstocks. अच्छा, ये जो look है, this is the top view. Okay, this is the top view. Let me write it down over here. This is basically the top view. ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो कैसा नजर आ रहा है. ठीक है, so we have the penstock. Penstock is another type of pipeline. We will discuss each and every part in bit detail in later on this lecture. Then we have a valve over here, a gate over here that controls the flow of water into the turbine. ठीक है, that is known as the inlet valve, an inlet to the turbine basically. अब जब टर्बाइन रोटेट करता है, it rotates the shaft of the alternator and the alternator produces three-phase supply. You see, the penstocks are nothing but the pipelines. Actual में, this is the Shasta Dam in USA. See, from a height, they are supplying the water through these pipelines to the powerhouse. This is the powerhouse basically. ठीक है, and then the expelled water from the turbine is released into the river again, and that is known as the tail race. ठीक है, मेन रिवर पीछे से चली आ रही थी. ठीक है, और बीच में हमने डैम क्रिएट किया, एंड देन अगेन द वाटर आफ्टर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन is released into the same path of the river, and that is known as the tail race. ठीक है, so these are the major components. Let us begin with, let us enumerate it. Okay, the catchment area आपने देख लिया. Second is the reservoir. Third is the dam. Four is the spillways. स्पिलवेज बेसिकली वो पार्ट होता है जब हमारे पास डैम के पीछे जो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर में पानी एक लिमिट से ऊपर हो जाए, देन वी हैव टू स्पिल आउट दैट वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर. ठीक है, अंडर फ्लडी कंडीशंस यूज होता है. देन वी हैव कंडक्ट्स. कंडक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? कंडक्ट्स आर द पाइपलाइंस, वेरियस टाइप ऑफ पाइपलाइंस दैट आर यूज्ड इन अ हाइड्रो पावर प्लांट. अब ये कंडक्ट्स ओपन भी हो सकती हैं और क्लोज भी हो सकती हैं, यानी ऐसे समझ लिए ये वाटर वेज है, वाटर पाथवेज है. देन वी हैव सर्ज टैंक्स. वी विल डिस्कस इन मच डिटेल अबाउट दिस. देन ड्राफ्ट ट्यूब्स. ये जो नीचे जो हम टरबाइन के नीचे अभी हमने देखा, टरबाइन के नीचे हमने यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब बनाया है और फिर वो टेल रेस में पानी जाता है. इसका अपना एक रीजन है.
यूज करने का, वी विल लुक इनटू इट, ठीक है। देन वी हैव द पावर हाउस एंड द स्विच यार्ड। अगर हम इसको देखें, द साइड व्यू ऑफ द पावर प्लांट, वी हैव अ डैम, दिस इज द रिजर्वायर। ये पेन स्टॉक्स के जरिए पानी टरबाइन में गया, टरबाइन ने रोटेट किया, और जो एक्सपेल्ड वाटर है यूजिंग द ड्राफ्ट ट्यूब, इट इज एक्सपेल्ड इनटू द रिवर विच इज द टेल रेस, ठीक है। इस टरबाइन ने इस जनरेटर को रोटेट कराया, द 3 फेज सप्लाई, ठीक है, गोज टू दी feeds the load through the switch yard, which contains the transformers and the switching yards and circuit breakers and all जो भी electrical equipment जो चाहिए हमें, ठीक है। So this is if you will see the powerhouse and the switch yard, they are a small part of the whole structure, civil engineering structure. Dam is dam जो होता है basically civil engineering structure है, जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वो पानी को रोक के रखता है, प्लस उसको ये देखना है कि कितना हमें प्रेशर झेलना है, बिकॉज वी विल लुक इनटू मच डिटेल्स अबाउट द डैम लेटर ऑन। अब इससे पहले कि हम इन पार्ट्स को देखें, आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट दिस थिंग, ओके। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिएशंस और वाटर स्टोरेज क्रिएशंस, वन इज नोन एज द पॉन्डेज, अनदर इज नोन एज द स्टोरेज। तो पावर हाउस विद पॉन्डेज में क्या होता है कि हमारे पास रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर को बेसिकली ये इसमें और इसमें ये फर्क है, पहली चीज कि ये ओवर हाइट और लार्ज रिजर्वायर्स के लिए और बड़े बड़े डैम्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यानी हायर, जिनकी हाई हेड है जिसका, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। और ये जो है लोअर हेड्स के लिए बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिवर है, एक फ्लो इसका है, वी क्रिएट अ हाइट बाय क्रिएटिंग वियर्स। ये क्या कहलाता है? वियर क्या है? अगर हम साइड व्यू देखें तो अगर हमने ये दीवार नहीं खड़ी की, ठीक है, वियर एक दीवार है बेसिकली, इट इज अ वॉल, ठीक है। व्हाट यू डू इज, इन केस 1 पानी अपने नॉर्मल बहाव पे फ्लो कर रहा है लो लेवल पे, आई वांट टू क्रिएट अ हायर हेड, व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ वॉल। अब पानी थोड़ा थोड़ा भरेगा यहाँ पे जब तक कि इस लेवल पे ना रीच करे और फिर फ्लो ऑफ ना कर जाए, ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड अ हायर हेड ओवर हियर। तो वियर बनाकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड से एक पावर चैनल निकालते हैं पानी का, दैट विल एंड क्रिएट अ डैम ओवर हियर। यहाँ पे एक छोटा सा एक रिजर्वायर पॉन्डेज बनाया, एक पॉन्ड बना लिया, और उस पॉन्ड के माउथ पे हम एक डैम क्रिएट करते हैं, दैट थ्रू, और उस डैम के बाद हमारे पास पेन स्टॉक्स होते हैं जो पावर हाउस में जाते हैं, एंड दे रन द टरबाइन एंड द एक्सपेल्ड वाटर गोज टू द टेल रेस। दिस इज वन काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। तो this is the powerhouse with pondage. Second kind of storage or reservoir is known as the storage. उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी रिवर है, ठीक है, we create a dam over that river and of course we select the site according to the height, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं कि we create a reservoir, a large reservoir। अच्छा, अब यहां पे जो ये पाथ आ रहा है रिवर का, या तो हम ये देखेंगे कि ये रिवर एक ही रिवर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा बनाएं इस डैम को कि वो 2-3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो, ठीक है। दिस एरिया, लेट मी राइट इट डाउन फॉर योर, दिस एरिया कैन बी अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 or 3 रिवर्स, जैसा कि केस में टेहरी में है, 2 रिवर्स आके एक जगह मीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां से आएगी एक, और दूसरा पहाड़ों में से निकलती हुई दूसरी तरफ से आके यहां पे एक बहुत बड़ा एरिया, एक पॉन्ड टाइप का या एक जो है रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूं।
ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिजर्वायर दैट इज नोन एज स्टोरेज। ठीक है, तो एक पॉन्डेज हो गया और एक स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो लार्ज पावर प्लांट्स आर large hydropower plants use storage type of reservoir, and smaller or medium sized power plants use pondage type of power plants. Okay, now coming to the parts that we were discussing, number one is the catchment area. तो जैसे हमने देखा कि हमारे पास रिजर्वायर है, रिजर्वायर के पीछे जो भी कंपोनेंट्स हैं जो उस रिजर्वायर को फीड कर रहे हैं पानी, दैट होल एरिया कम्स इनटू द कैचमेंट एरिया। सो इट इज द होल एरिया बिहाइंड द डैम विच कैरीज ऑल द सोर्सेज ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, सोर्सेज मीन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ व्हाट, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर फॉर द रिजर्वायर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा दैट सप्लाई द रिजर्वायर। अच्छा, दूसरा सोर्स ऑफ वाटर जो हो सकता है दैट कैन बी रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर जैसे पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, इट इज द वाटर दैट फॉल्स ड्यूरिंग रेनफॉल, और वो पानी थोड़ा सा वो पानी जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ बह के उस रिजर्वायर में आता है थ्रू द रिवर्स और स्ट्रीम्स जैसा भी है। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो कैचमेंट एरिया है, जितना उसके अंदर ढलान होगा, जितना उसके वो स्टीपर होगा, उतना ज्यादा रन ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, अगर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिवर बेड हमारा ये है, ठीक है, अगर हमारे पास जो स्लोप है साइड के पहाड़ों का वो कम है, तो ज्यादा पानी सीप करेगा जमीन के अंदर और कम पानी यहां पे आएगा। इस केस में ज्यादा पानी हमारा रिवर बेड में या रिजर्वायर में आएगा और कम पानी जमीन के अंदर सीप करेगा। राइट, सो कैचमेंट एरिया के लिए यह भी देखना होता है कि टेरेन हमारा जो है, आसपास का जो एरिया है वो कितना स्टीप है, कितना उसके अंदर गहराई है। ठीक है, देन कम्स द रिजर्वायर। रिजर्वायर इज क्रिएटेड बिहाइंड अ डैम टू इंश्योर दैट अ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, मतलब जब कम पानी आ रहा है, यानी बारिश का सीजन नहीं है और पानी हमारे पास रिजर्वायर में इतना मेंटेन रहना चाहिए कि वो पावर जनरेशन कर पाए। एटलीस्ट इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड द पावर ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स फॉर द पीक लोड। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, द रिजर्वायर में बी नेचुरल लाइक अ लेक ऑन अ माउंटेन। ठीक है, रिजर्वायर हम कैसे बनाते हैं, अगर हमें ऐसा लेक मिल जाए जिसके पास सोर्सेज हो फ्रॉम डिफरेंट रिवर्स, ठीक है, एंड इट इज ऑन अ हाइट, तो ये तो गॉड गिफ्टेड चीज हो गई। राइट, और उसको हम एक हाइट से फॉल कराएं और फिर उससे हम जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा तरीका यह है कि हम आर्टिफिशियल डैम क्रिएट करें, एक डैम बनाएं और उसके पीछे एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्रिएट करें, जैसे कि हमने टेहरी में किया है। ठीक है, मैं बार बार टेहरी का बोलता हूं, आप टेहरी को एक दफा जाके जरूर देखें, इफ यू आर एबल टू, और यू एटलीस्ट ऑन द इंटरनेट। सो व्हाट इज डैम? Dam, it performs two main functions. Number one, it develops a reservoir of the desired capacity to store water. Of course, दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है या एक ही रिवर पे हमें डैम रिजर्वायर क्रिएट करना है, तो हमें एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, एंड दैट वॉल इज नथिंग बट अ डैम। ठीक है, इट बिल्ड्स अप अ हेड फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, अब वाटर एक्यूमुलेट होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी वहां पे, और उसको हम काइनेटिक एनर्जी में फिर नीचे लाके टू डी टर्बाइंस बनाते हैं, तो इट क्रिएट्स अ हेड बेसिकली फॉर पावर जनरेशन। ओके, देन वी कैन क्लासिफाई डैम्स। ठीक है, डैम्स, अब हम क्लासिफिकेशन किसका करें? सिर्फ डैम्स का, हाइड्रो पावर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन नहीं है ये सिर्फ डैम्स का क्लासिफिकेशन है। नंबर वन, बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, किस पर्पस के लिए डैम बनाया गया है? ऐसा नहीं है कि हम डैम्स को हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए ही यूज करेंगे, नहीं, डैम्स कैन बी क्रिएटेड फॉर अदर फंक्शंस आल्सो। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग अ स्टोरेज डैम।
स्टोरेज डैम वो डैम्स होते हैं जो हाइड्रो पावर के लिए मेनली यूज किए जाते हैं. द फर्दर एडवांटेज ऑफ दिस इज इट कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इरिगेशन. ठीक है, हमने डैम क्रिएट किया, डैम, उस डैम के जरिए से हमारे पास एक्सेस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो हम कैनाल्स निकाल सकते हैं उसी रिजर्वायर में से टू सप्लाई वाटर टू इरिगेट लैंड्स, अदर लैंड्स वेयर द वाटर वाज अर्लियर वाज नॉट एबल टू रीच. ठीक है, we can create, similarly we can create water supplies in for those areas where water is a scarcity. ठीक है, then we have divergent dams. हमारा एक पाथ है, कोर्स ऑफ वाटर है जिसपे पानी रन कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पानी को डाइवर्ट किया जाए क्योंकि उधर वो नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है. What we do is we create a dam and we bypass that water through that dam into another direction. ठीक है, देन वी हैव डिटेंशन डैम्स. डिटेंशन मीन्स रोक के रखना. ठीक है, या किसी को पकड़ लेना. तो ऐसा पानी जो खराब पानी है और उसको डिटेंशन करना, उसको पकड़ लेना. जैसे चोर को पकड़ लेते हैं, वी डिटेंशन में चला जाता है. किसी मुजरिम को पकड़ा है, तो फ्लड वाटर्स बेसिकली क्रिएट हैवॉक. ठीक है, वो परेशान करते हैं, राइट. सो वी नीड टू स्टोर दैट एक्सेस वाटर, द फ्लड वाटर. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज दैट एक्सेस वाटर फॉर गुड पर्पजेस. ठीक है, तो ऐसे डैम्स बनाना जिसके पीछे हम उस वाटर को स्टोर कर लें, फ्लड वाटर्स को. ठीक है, सो डिटेंशन डैम्स आर यूज्ड फॉर दैट. देन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स कैन बी बेस्ड ऑन द शेप्स. स्ट्रेट, ऊपर से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन, यानी पीछे से जो रिजर्वायर आ रहा है, यहां पे रिजर्वायर है. ठीक है, लेट मी मार्क इट. यहां पे हमारे पास रिजर्वायर है और ये जो है यहां पे टेल रेस है. ओके, और ये टॉप व्यू है. बेसिकली ऊपर से हम देख रहे हैं, तो पीछे से रिजर्वायर है, यहां पे डैम है, पीछे से यहां पे रिजर्वायर है, ये डैम है बेसिकली, और ये टेल रेस है. यहां पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट दी पावर हाउस. ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल बेसिकली इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जब हम इसको साइड से व्यू करेंगे. ठीक है, जब हम यहां से व्यू करेंगे, इसको इधर से व्यू करेंगे तो हमें ये वाला साइड व्यू नजर आएगा. एंड दिस इज दी ट्रेपेजॉइडल स्ट्रक्चर. ओके, देन वी हैव दी आर्च डैम्स. व्हाट आर आर्च डैम्स? इसमें हमारे पास कर्वेचर होता है. ऊपर से देखेंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर कर्व्ड इन नेचर. अब ये डिपेंड करता है कि उस एरिया पर, ठीक है, स्ट्रक्चर उसके आसपास का कैसा है. यानी रिजर्वायर के दोनों साइड पे जो एरिया है जहां पे हम डैम क्रिएट कर रहे हैं, what kind of that area is and where is the maximum pressure of water basically. ठीक है, sometimes the pressure of the water is straight on the walls of the dam and sometimes the pressure is even on the sides of the wall. So based on that we decide, or the civil engineers or architecture engineers decide what kind of dams are needed to be built. Whether straight type of trapezoidal dam is required or arch type of dam is required. ठीक है. Now third classification of dams can be based on the material that is being used. ठीक है, नॉर्मली हम जैसे अपना घर बनाते हैं तो we use concretes and steel or we can say iron. ठीक है, तो और अगर कोई आदमी कंक्रीट यूज नहीं कर रहा है तो he uses stone and cement to build that the house. So similarly we are having gravity dams, earth dams, rock fill dams. So what are gravity dams? These are dams which are having their weight. We are creating a weight on the land that was already free of that weight. तो अगर मैं इसको देखूं यहां पे जमीन पे, अगर जब तक मैं ये डैम क्रिएट नहीं कर रहा हूं तब तक तो इसके ऊपर ये कोई वेट नहीं है ना.
So we are creating a extra weight over a land, ठीक है, तो इसलिए और इनकी अपनी मास, दैट मीन्स वेट होगा, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, दैट वाई दे आर नोन एज ग्रेविटी डैम्स। तो और ये दो टाइप के होते हैं, स्टोन मेसनरी डैम और एंड कंक्रीट डैम, ठीक है। तो कंक्रीट से बना हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम कंक्रीट के बने होते हैं, स्टोन मेसनरी छोटे डैम्स के लिए यूज होता है कि हमने ब्रिक्स की वॉल खड़ी कर दी। कंक्रीट डैम्स दो टाइप के हो सकते हैं, प्लेन कंक्रीट का बनाया जाए या स्टील रीइंफोर्स्ड बनाया जाए। ऑफ कोर्स स्टील रीइंफोर्स्ड आर मच स्टर्डी एंड मोर रिलायबल, बट ऑफ कोर्स द थिंग इज दैट दे आर मोर कॉस्टली, ठीक है। दूसरे टाइप ऑफ डैम्स, अच्छा यहां पे अगर हम देखें ये ट्रेपेजॉइडल टाइप ऑफ डैम है, ठीक है, और दो चीजें हैं, एक तो इसको अपना वेट देखना है, प्लस ये जो यहां पे पानी जो एक्यूमुलेट हुआ है, रिजर्वायर बना है, वो एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, तो रिजल्टेंट एक फोर्स डेवलप होगी एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स विल is what this dam should handle.